कौशल कार्यानुभव आधारित अर्थात जीवन उपयोगी हो सकते हैं, साथ ही जीविका उपार्जन संबंधित भी हो सकते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 में कौशल संवर्धन पर विशेष जोर दिया गया है एवं इसे पाठ्यक्रम का अनिवार्य अंग बनाया गया है। कौशल संवर्धन के लिए केंद्र सरकार द्वारा भी बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, PMKVY एवं लघु कुटीर एवं मध्य। नाउ व्हाट इज स्किल? Skill is defined as the ability to do something that comes from training, experience or practice. That means skill is what? It comes from training, experience and practice. It is an ability and capacity acquired through continuous, systematic and sustained effort to smoothly and adaptably carry out complex activities or job function involving ideas, cognitive skills, that means संज्ञानात्मक जो हमारी दक्षताएं हैं, things that means ऐसे things जो हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। These are called technical skills and are people interpersonal skills. Here the interpersonal skills means our social skills also. The ability to use one's knowledge effectively and readily in execution or performance. So students, we can say skill is what? Skill is full of knowledge, practice and experience. Now, abilities and knowledge make the skills. How can we define the knowledge? Knowledge is the theoretical or practical understanding of a subject. You can see in this slide, the picture shows students are taking knowledge from the teacher in the class. They are taking knowledge. Okay, definitely it is theoretical or it can be practical, and they are going to understand a subject and they are acquiring knowledge. Now another part of skill is abilities. जैसा कि हमने देखा कि स्किल एक दक्षता है और इसमें एबिलिटी भी शामिल है किसी कार्य को करने की। एंड एबिलिटी इज व्हाट? एबिलिटी इज इंटरनल जेनेटिक or the qualities, cognitive, physical, psychological tools of being able to do some things. So, skill again can be defined the ability to do something that comes from training, experience or practice. Okay, skill is what? हम अपने अनुभव, प्रशिक्षण एवं अभ्यास के द्वारा जो कुछ भी सीखते हैं वह सभी की सब स्किल्स कहलाते हैं। एंड नाउ वी कैन अंडरस्टैंड डिफरेंट स्किल्स। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किल्स। लेबर स्किल्स जस्ट एज इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव। लेबर स्किल्स से यहाँ पे मतलब है कि ऐसे स्किल्स जो हमें दैनिक जीवन में उपयोग होते हैं या इनके द्वारा हम दैनिक जीवन को अपना सुचारू कर पाते हैं। जस्ट एज इलेक्ट्रिशियंस, कारपेंटर्स, पेंटर्स, बेकर्स एट्सेट्रा। ओके, दीज कम्स फ्रॉम लेबर स्किल्स एंड सम देयर इज अदर स्किल्स आल्सो। दीज आर कॉल्ड लाइफ स्किल्स। व्हाट आर दे? लाइफ स्किल्स आर सेट ऑफ ह्यूमन स्किल्स acquired by learning or teaching or direct experience. Now life skill, that means हम अपने जीवन में जो कुछ भी सीखते हैं और ये सीखना किन बातों से संबंधित है? टाइम मैनेजमेंट, क्रिएटिव थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड सेल्फ अवेयरनेस. So these are called life skills. Okay. Now another skill is there, people skills. What are they? Psychological and social skills are people skills. Understanding ourselves
and moderating our responses, talking effectively and empathizing accurately, building relationships of trust, respect, and productive interaction. Okay. Now, social skill is any skill facilitating interaction and communication with others. Okay. Social skills, that means if we are interacting to others, communicating to others, then these skills are under social skills, and the process of learning such skills is called socialization. Okay. Students, these skills, we have discussed life skills, labor skills, people skills, and social skills. They can be categorized again in two types of skills, that are soft skills and hard skills. Okay. Soft skills are what? Soft skills are related to our emotional intelligence. Emotional intelligence, or EQ, also known as our right brain, the emotional center. And what are there in soft skills? It includes management skills like self-confidence, stress management, and people skills like communication or networking skills. So these are the soft skills. And soft skills means emotional intelligence, or we can say the emotional center, right brain of our body. Okay. Next, there is hard skills. Some skills, those are not in the soft skills. We can categorize them into hard skills. What are they? Hard skills are any skills relating to a specific task. These skills are quantifiable. Okay. What are they? Just as our learning of subjects, examples, we can say hard skills includes math, physics, accounting, programming, finance, biology, chemistry, and statistics. That means the knowledge we are getting from the class. Okay. That is, we can say the knowledge which is subjective is called the hard skills. And it is also known as IQ, also our left brain, and it is called the logical centers. Okay. Students, two skills, that is soft skills and hard skills, is makes the success. Skills, just these are the दक्षताएं, ये दक्षताएं हैं, ये हमारी क्षमताएं हैं, ये हमारी योग्यताएं हैं। अब जब क्षमता, दक्षता और योग्यता की हम बात करते हैं तो ये सभी हमें सक्सेस की ओर लेकर जाती है। अब हम देखें कि हम जो स्किल्स, जितने भी स्किल्स हैं हमारे पास, हम उन्हें टू टाइप्स में हमने कैटेगराइज किया, एक सॉफ्ट स्किल्स एंड हार्ड स्किल्स। एंड सॉफ्ट स्किल इज नोन एज हाउ इमोशनल quotient, and the hard skill is also known as intelligence quotient. And the success is the sum of IQ and UQ, where what is the percentage of EQ and IQ in our success? It is for IQ 15% and it is for EQ 85%. Okay, what does it mean? It means that for our success, more importance of emotional quotient is there. That means the soft skill is more important for our success. Okay, what are the soft skills? Once I am going to revise them. They are self-confidence, stress management, and people skills. You can understand. These are the 85%. These decide 85%. We can say the success of us. And now, what is the percentage of IQ? We can say the subjective knowledge, it is 15%. 15% of your workplace or career success comes from your hard skills, while 85% comes from your ability to get along with people. Okay, so interaction, or we can say the social skill, or our stress management, these are the important for success. Students, here I am going to tell something about
acquiring a new skill. How can we acquire a new skills? If we are going to acquire new skills, या हम कुछ नया सीखने जा रहे हैं, those are important for our life as well as we can say for our career. So how we can acquire it and what steps should be followed to us. Now see, first number, check your readiness. Are you ready for learning that particular skill? Make sure it's needed. क्या ये आपके लिए आवश्यक है सीखना? एंड थर्ड, नो हाउ यू लर्न बेस्ट. किस तरह से आप बहुत अच्छी तरह सीख सकते हैं. गेट द राइट हेल्प. रिफ्लेक्ट along the way. Start small and during learning a new skill, be patient and challenge yourself to teach it to others. That means if you have followed the whole way and you have learned the skill that now last term we can say is there to transfer it to others. यदि हम इसे दूसरों को ट्रांसफ़र कर पाते हैं तो हम उस स्किल को पूरी तरह से सीख गए हैं और हम उसके जान पाते हैं कि हाँ अब हम उसमें दक्ष हो चुके हैं. तो दीज आर द स्टेप्स इफ़ वी आर गोइंग टू एक्वायर न्यू स्किल्स. आपकी उसमें तैयारी देखें, तत्परता देखें. इट मे बी फॉर योर कैरियर एंड इट मे बी फॉर योर लाइफ एक्सपीरियंस. मेक श्योर इट्स नीडेड कि आपके लिए ज़रूरी है सीखना. अपना बेस्ट दें उसको सीखने के लिए. राइट वे फॉलो करें. छोटी सी शुरुआत करें. धैर्य रखें और उस जो स्किल को आपने सीखा उसे दूसरों को ट्रांसफ़र करने की कोशिश करें. फॉलो दिस वे. तो स्किल इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. यू नो, हम जाने अनजाने में जिसे जानते नहीं हैं स्किल नाम से, वो सब हमारे पास है. सभी हम जो योग्यताएं हैं हमारे पास होती हैं और हम उसे दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं. ठीक है, चाहे हम अपने करियर में या किसी भी जो दैनिक उपयोग की जो दिनचर्या है उसमें हम उसे इस्तेमाल करते हैं. नाउ आई विल कंक्लूड द स्किल with these 3 lines. Skill is practical. Okay, skill is what? It is practical. Without practice it cannot be transferred. What does it mean? It is a practical. Definitely हम इसे अभ्यास के द्वारा ही सीख पाएंगे और बिना अभ्यास के इसे ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता. ना तो हम किसी दूसरों को इस स्किल को दे सकते हैं, ना हम किसी दूसरे से इस स्किल को सीख सकते हैं. तो इट शुड बी क्लियर दैट किसी भी स्किल को सीखने के लिए, किसी भी दक्षता को हमें लाने के लिए हमें बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. और न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है 2020, इसमें स्किल को फोकस किया गया है, ना कि जैसे कि आपको पता है कि यदुवंशी सर ने अभी स्किल के बारे में बताया और मेरा टॉपिक है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, एम्प्लॉयबिलिटी, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी. तो एक सीधी सी बात है कि स्किल बिल्कुल अटैच है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट से, एम्प्लॉयबिलिटी से. ये एक जुड़े हुए सब्जेक्ट्स हैं. और सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या होता है. एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है उद्यमिता का विकास, सबसे ज़्यादा व्यावसायिकता का विकास. एंड देन इज एम्प्लॉयबिलिटी. एम्प्लॉयबिलिटी जब आपकी व्यावसायिकता बढ़ेगी, जब आपकी उद्यमिता बढ़ेगी, तो सीधी सी बात है कि आपको अनएम्प्लॉय नहीं रहना होगा, है ना. आपको रोज़गार उतना ज़्यादा मिलेगा. एंड सेकंड इज़ दैट कि चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी. तो जब कोई नई चीज़ आती है तो सिंपल सी बात है कि चैलेंजेस होंगे और हम उन चैलेंजेस को फेस करेंगे और दैन हमको मौके मिलेंगे. क्योंकि जब तक हम चैलेंज फेस नहीं करेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे. तो सबसे अच्छी बात यह है कि जो हमारी नई शिक्षा नीति जो आगे जिसमें परिवर्तन किया गया है वो बहुत फ्लेक्सिबल है और उसमें एक पैटर्न नहीं है कैरियर ओरिएंटेड कि हमें ये सब्जेक्ट चूज़ करना है तो ही हम आगे बढ़ेंगे. हम बहुत सारी स्किल्स का यूज़ करके अपनी एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि अपनी व्यावसायिकता को बढ़ा सकते हैं, अपनी एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, जो कि हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है कि बहुत सारा जो हमारे देश की जनता है वो बेरोज़गारी की समस्या से आए दिन रूबरू हो रही है ना. तो जब हम हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है उसमें सबसे अच्छी बात है कि मानव संसाधन का सबसे अच्छा प्रयोग किया गया, क्योंकि बहुत पहले हमारे साथ ये होता था कि हमारे पास साधनों की कमी थी.
अब हमारे पास इतनी सारी स्किल्स हैं कि हम अपनी स्किल्स के साथ आगे बढ़ सकते हैं, है ना। और इसका पूरा उद्देश्य ये है कि शैक्षिक गैर सरकारी संगठन जो है, उद्यमी है, उनका एक राष्ट्रीय पूल बनाना, उन्हें आगे आने और आगे आने वाली पीढ़ी के साथ अपने ज्ञान और अनुभव को साझा करना और उस मिशन में शामिल करना और उसके साथ आगे बढ़ना। और जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है उद्यमिता का विकास, व्यावसायिकता का विकास। अपनी व्यावसायिकता, अब पहले तो अपनी स्किल्स का प्रयोग करना, उसके बाद उसको व्यावसायिकता में परिवर्तित करना और फिर अपने लिए रोज़गार के अवसर लेना। तो इसका सीधा सीधा सा एक यही मतलब है। और हमारी शिक्षा नीति को इस तरह तैयार किया गया है कि हम अनुशासन के साथ, डिसिप्लिन के साथ, जो हमारी पहले की परंपरा थी, गुरु शिष्य परंपरा, यानी कि हमारे बच्चे डिसिप्लिन में भी थे, और सबसे अच्छी बात कि उन्हें अपनी स्किल्स के साथ आगे बढ़ने का एक नया मौका मिला है। तो इसमें चुनौतियाँ बहुत आएंगी, लेकिन हमें अपनी चुनौतियों के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि परिवर्तन हमेशा अच्छे होते हैं। तो हमें अपने लिए आगे मौके बढ़ाने हैं। और जो आपकी शिक्षा नीति जिस तरीके से तैयार हुई है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। उसके सबसे अच्छे फ़ायदे तो ये हैं कि आप अपनी कैपेसिटी को खुद पहचान सकते हैं। आपकी जो भी स्किल्स हैं आप उन्हें समझ सकते हैं, आपके टीचर्स समझ सकते हैं, और आप अपनी स्किल्स के साथ आगे बढ़ सकते हैं। आपको क्रिएटिव बनाना, मोर क्रिएटिव बनाना, ताकि आपकी रचनात्मकता का विकास हो, आपके सोचने की क्षमता का विकास हो, आप और भी चीज़ें देख सकें। एक जो पैटर्न चल रहा है उसके आगे जाके आप अपनी चीज़ों को क्लियरली देख सकें और उनके साथ आगे बढ़ सकें। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमें एक ग्लोबल सिटीज़न बनाने की तैयारी की गई है इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे अवसर प्राप्त कर सकें। और सबसे अच्छी बात कि हमें अपनी जड़ें भी साथ में दी गई हैं कि हम अपने गुरु शिष्य की परंपरा को कभी ना भूलें, जड़ों के साथ भी जुड़ें और मॉडर्न से मॉडर्न चीज़ों का यूज़ करके, मॉडर्न से ज़्यादा संसाधनों का यूज़ करके हम आगे से आगे ज़्यादा बढ़ें। और हमें इसको बहुत अच्छे से अडेप्ट करना चाहिए, जो कि हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है। इसमें जो भी चैलेंजेस हैं हम उन्हें फेस करेंगे और फिर हम इसमें आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि अब जब आप आएंगे स्कूल तो आप इस नई शिक्षा नीति जो हमारी लागू की गई है, एक बहुत सार्थक योजना है, इसके साथ आप लोग आगे बढ़ेंगे, अपने चैलेंजेस को फेस करेंगे एंड बी मोर अटेंटिव एंड ऑल द बेस्ट फॉर यू, ओके। तो मैं अपनी बात को यहीं विराम दूँ।